Hello, 10th class. Let us start with the poem Animals written by Walt Whitman. So, Animals is a poem written by Walt Whitman where the poet admires the animals for being calm, composed, and self satisfied and contrasts their qualities with those of human beings. He finds the animals to be free from all greed, ego, as well as more human than human beings. He would prefer to shun the world of the human beings and live with the animals. So पोएम में क्या है, वॉल्ट विटमन जी क्या कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं कि एनिमल्स आर मोर काम, कंपोज्ड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड। वो बिल्कुल शांत होते हैं और उनको तसल्ली होती है, और उनको कंपेयर किया ह्यूमन बींग्स से जिनमें ग्रीड, ईगो भरी हुई है। तो आज के टाइम का ह्यूमन बीइंग वैसा नहीं है जैसे पहले होता था। सो पोइट चाहते हैं कि मैं ऐसे ह्यूमन बीइंग्स की बजाय मैं एनिमल्स के साथ रहना पसंद करूँगा। सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. Now, what the poet is conveying here is that I think I could turn and live with the animals. कि मैं एनिमल्स के साथ रहना पसंद करता हूँ। दे आर सो प्लेसिड, दे आर सो काम, शांत हैं, एंड वेल कंटेन्ड, वेल सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और मैं उन्हें खड़े होकर बहुत समय तक देखना चाहता हूँ। सो इन दिस स्टेंज द पोइट एक्सप्रेसेस द डिज़ायर टू टर्न अवे from human beings and live with the animals because he feels that animals are calm, quiet and contented. तो पोइट चाहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहें, क्योंकि जो एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा काम, क्वाइट और कंटेंटेड हैं, शांत हैं, उनके अंदर कोई ग्रीड नहीं है। एंड द पोइट इनडायरेक्टली कमेंट्स ऑन द रेस्टलेसनेस, ग्रीड एंड डिससेटिस्फैक्शन अमंग द ह्यूमन बींग्स। तो आज का जैसा समय चल रहा है उसके हिसाब से ह्यूमन बींग्स बिल्कुल ही जो है ग्रीडी, डिससेटिस्फाइड हो गए हैं और बदल गए हैं। बिल्कुल वैसे ह्यूमन बींग्स नहीं हैं जैसे पहले होते थे। ही इज़ सो मच इम्प्रेस्ड बाय द नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ द एनिमल्स दैट ही प्रेफर्स टू लिव अमंग दैम। तो उसे पोइट को जो है एनिमल्स की नेचुरल क्वालिटीज़ बहुत पसंद आ रही हैं और उनके साथ रहना पसंद करते हैं। ही गेजेज द एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिज़ायर्स टू बी विद दैम। वो एनिमल्स के साथ को देखते रहते हैं और उनके साथ रहने की डिज़ायर व्यक्त कर रहे हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Now, what is being conveyed here is that they do not sweat and whine for their condition, means they are satisfied. They do not have anything to feel guilty of. They do not lie awake in the dark, and they don't need not to speak lies and weep for their sins, and they never weep for their sins like the human beings. They do not make me sick discussing their duties to God. Now they also do not discuss what duties have been provided to them by the God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Now what he wants to convey is that because animals have clear conscience, they do not pray to the God for forgiveness. All the animals are contented and do not hanker after worldly materialistic possessions, means उनको किसी भी वर्ल्ड की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। The stanza is in fact the comment on the materialistic race among the human beings to accumulate the things more and more. तो ह्यूमन बींग्स जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, ग्रीड है, और सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है उनके पास, ऐसा सब एनिमल्स में नहीं है। दे आर सेटिस्फाइड। ओके। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relation to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them
plainly in their possessions. Not one kneels to another. एनिमल्स में क्या है, एक दूसरे के सामने नहीं झुकते हैं. नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और ना ही उनके प्रकार की कोई ऐसी प्रजाति जो काफ़ी समय तक यहाँ पर जिंदा थी. एनिमल्स डू नॉट बो बिफोर एनी सेंट और एनी अदर एंसेस्टर्स, वो किसी के सामने नहीं झुकते हैं. हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम बैक इन द पास्ट एशियंट टाइम्स. All the animals have such a sense of equality that none claim respect from others. और ना ही एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो वहाँ पे ईगो प्रॉब्लम है ही नहीं. एंड नन इज burdened with sorrow, और कोई भी दुख से ग्रसित नहीं है. The poet appreciates the relation of animals and believes that once the qualities found in the animals are human qualities, जो एनिमल्स में क्वालिटीज़ हैं अगर ह्यूमंस में आ जाएं, जो काइंडनेस, कामनेस, क्वाइटनेस और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग अगर ह्यूमंस में आ जाए, ह्यूमन बींग्स हैव गिवन अप दीज वर्चूज बट एनिमल्स हैव प्रिजर्व्ड दैम. तो ये सारी क्वालिटीज़ थी पहले सभी ह्यूमन बींग्स में थी, बट टाइम के अकॉर्डिंगली सब बिल्कुल डिसअपियर हो गई हैं. तो पोइट कह रहे हैं कि एनिमल्स ने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा और ह्यूमन बींग्स ने उनको अब छोड़ दिया है. राइट बेटा. Now let us see the fourth para. I wonder where they get those tokens. Now what are the tokens? Tokens of the qualities modesty, contentment, innocence, selflessness. तो देखिए एनिमल्स के पास में ये सब चीज़ें हैं. मॉडेस्टी है, कंटेंटमेंट है, इनोसेंस है, सेल्फ लेसनेस है. तो पोइट सोचते हैं कि ये सब इनके पास टोकन कहाँ से आए. डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम which they have lost completely with the passage of time, which human beings have lost them. Now these qualities are to be found among the animals only. The poet remarks that animals have picked up these virtuous traits which were dropped down by human beings. ऐसी qualities human beings ने छोड़ दी हैं, animals के पास ही हैं बस. The poet implies that animals have acquired the admirable traits while human beings have abandoned them completely. और ह्यूमन बींग्स ने अपनी ईगो, हेट, ग्रीड में सब कुछ ख़त्म कर दिया है. दे हैव लॉस्ट देयर सेल्फ. दे हैव जस्ट applied materialism in their lives. Right. Now I think summary is very much clear to you as I have explained all the stanzas to you. So what is the essence or the summary of this poem is that the poet is such a staunch admirer of the animals that he can go on observing them for hours together. और एनिमल्स इतने पसंद हैं पोइट को कि वो उनको लगातार कई घंटों तक देख सकते हैं. he finds them to be so calm and composed that he longs to turn into an animal in order to live in their midst. तो पोइट बजाय कि ह्यूमन बींग्स के एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. उनके अंदर जो कामनेस है, कंटेंटमेंट है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो पोइट को पसंद आती है. उनके अंदर कोई हिपोक्रेसी नहीं है, दिखावा नहीं है, ईगो नहीं है. तो यही बात पोइट कन्वे करना चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने ये सब गुड क्वालिटीज़, गुड ट्रेड्स ख़त्म कर दिए हैं और ये बचे हैं केवल एनिमल्स के पास में. ओके. Now let us see the theme. The poem brings out a contrast between the man and animal. In the good old days, men possessed good qualities. कि पुराने दिनों में आदमियों के पास में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती थी. Which they shed with the passage of time. और टाइम के अकॉर्डिंगली वो सारी की सारी क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई हैं. The animal still retains the virtue that have been lost by human beings. और एनिमल्स नहीं बदले हैं भाई, एनिमल्स तो वैसे ही हैं. Thus one would feel more at home with the animals rather than the human beings. तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी जंतु या कोई भी प्राणी आज के समय में ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा एनिमल्स के साथ में ज़्यादा आराम से रह जाएगा. क्योंकि एनिमल्स के अंदर वो फीलिंग नहीं है जो मनुष्य के अंदर में है. मनुष्य जो है बिल्कुल अपने आप तक सीमित रह गया, दूसरे के दुख सुख से उसे कोई लेना देना नहीं रहा है. एनिमल्स लेड अ लाइफ फ्री फ्रॉम ग्रीड. उनके पास कोई लालच नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, ईगो नहीं है, डिसकंटेंटमेंट नहीं है, आफा तफरी नहीं है. देयर वर्ल्ड इज़ मार्क्ड बाय पीस, इक्वलिटी एंड कंटेंटमेंट. और उनका वर्ल्ड पीस, इक्वलिटी और कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन से भरा हुआ है.
Now let us see the message. The poem Animals by Walt Whitman seems to suggest the human beings, the crowning glory of the God's creation, have shed their noble virtues and values and turned into uncivilized beasts, whereas the animals seem to exhibit qualities that behove ह्यूमन बींग्स। तो क्या कह रहे हैं पोइट, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए कि भगवान ने ह्यूमन बींग्स को सब अच्छी क्वालिटीज़ दी थी जो कि मनुष्य भूल गया है, उसने पता नहीं कहाँ छोड़ दिए हैं, पर एनिमल्स ने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा है। एंड दिस इज़ ट्रू। देखो एनिमल्स बोल नहीं सकते लेकिन उनके अंदर सभी चीज़ फील करने की ताकत होती है। इट इज़ बेटर टू लिव द एनिमल्स than human beings whose society is marred by hypocrisy, greed, ego, insincerity, hatred, discrimination and materialism। तो देखिए ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ हिपोक्रेसी, ग्रीड, ईगो इन सब चीज़ों से भरी हुई है, जबकि एनिमल्स इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, सेल्फलेस हैं। द पोइट सिम्स टू गिव द मैसेज दैट ह्यूमन बीइंग्स मस्ट ट्राई टू रिडिस्कवर एंड इम्बाइब द वर्चू विच दे मे लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन। तो जैसे जैसे मनुष्य मॉडर्न होता जा रहा है वो अपनी अंदर के अच्छे गुणों को बिल्कुल ख़त्म करता जा रहा है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी उन चीज़ों को दोबारा से रिटेन करे और एनिमल्स से कुछ सीखे कि वाई दे हैव लॉस्ट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ द ग्रीड, ईगो एंड ऑल इविल्स। ओके, so let us see the poetic devices used in the poem. Alliteration is occurrence of the same sound at the beginning of the adjacent or the closely connected words। तो words में जो closely connected words है उसमें बार बार एक ही sound का repeat होना alliteration होता है। देखिए कैसे यूज़ किया गया alliteration। I stand and look at them long and long। L look, L long, L long। तो L जो sound repeat हुआ है यहाँ पे उससे देखिए आप I wonder where they get those tokens। Wonder W, where W, and they TH the sound and those TH the sound। साउंड को देखना है, वर्ड्स को नहीं देखना है। ओके बेटा, साउंड्स जो हमारी आवाज़ आ रही होती है हमारे अल्फ़ाबेट्स में वो होते हैं साउंड्स। Okay, then repetition. Poet often repeat the single words of the phrases, line, and sometimes even the whole stanza at the interval to create the musical effect, to emphasize a point, to draw the reader's attention, or to lend unity to a piece। Right? तो किसी लाइन में, फ्रेज में या किसी लाइन को बार बार रिपीट करना वो होता है रेपिटेशन। जैसे आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग वर्ड को यूज़ कर दिया बार बार तो अपनी पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए। फिर देखिए क्या है मेटाफर। अ मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू मेक अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए जब कुछ यूज़ किया जाए तो वो होता है मेटाफर। उसमें लाइक एंड एज को नहीं यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ। तो टोकन वर्ड इज़ द मेटाफर हेयर। टोकन किसके लिए यूज़ किया है? फॉर द ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑफ द इनोसेंस, ऑनेस्टी, कंटेंटमेंट, बट द कंपेरिजन इज इन डायरेक्ट विदाउट द वर्ड्स ऑफ द कंपेरिजन। ओके, so next device is anaphora। Anaphora is a literary device in which the writer repeats the same beginning of the clause or a sentence, chiefly with the purpose of emphasis on the repeated element but also to bring rhythm in the writing। तो रिपीट करता है, उस एलिमेंट को रिपीट करने के लिए वर्ड को यूज़ करता है और रिदम भी लाने के लिए। इन दिस पोएम द एक्सप्रेशन दे डू नॉट हैज़ बिन रिपीटेड 3 टाइम्स। दे डू नॉट को 3 बार रिपीट किया टू एम्फेसाइज द एब्सेंस ऑफ सम इविल क्वालिटीज़ इन द एनिमल। तो एनिमल के अंदर इविल क्वालिटीज़ को ये बताने के लिए कि इनके अंदर नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। सिमिलरली द पोइट हैज़ रिपीटेड द एक्सप्रेशन नॉट 1 2 times। दिस इज़ एन एनाफोरिक एक्सप्रेशन एंड एम्फेसाइजेज द प्रीवेलेंस ऑफ इक्वलिटी एंड कंटेंटमेंट अमंग द एनिमल्स। तो एनिमल्स की गुड क्वालिटी को बताने के लिए यूज़ किया है। नाउ व्हाट इज़ पन? पन इज लिटरेरी डिवाइस इन विच अ पोइट प्लेज अपॉन अ वर्ड यूजिंग इट टू मीन डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम टू क्रिएट अ ह्यूमरस एंड रेटोरिकल इफेक्ट। तो ह्यूमरस और रेटोरिकल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है पन। I stand and look at them long and long। The word long that has been used twice has been punned upon। तो 2 बार यूज़ किया long को तो उसको पन किया है। The poet means that he stands and look at the animal for a long time and he longs to be one with them। और poet कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं का एक
हिस्सा बन जाऊं. So what rhyme scheme has been used here? The poem does have a definite rhythm, but it does not have any regular rhyme scheme. कोई rhyme scheme नहीं है. It is written with in a free verse. Free verse है, कोई rhyme scheme नहीं है. Okay बेटा. So let us see some textual question answers. Notice the use of the word turn in the first line. I think I could turn and live with animals. What is the poet turning from? The poet is turning away from the human world. Poet कहाँ से turn करना चाहते हैं? Human world से. That is a marred with materialism, जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है materialism से. केवल पैसे की भूख रह गई है. टू द एनिमल वर्ल्ड. अब एनिमल वर्ल्ड में तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी सोफे की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में घुसे हुए हैं. इन फैक्ट ही इज़ टर्निंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द falsehood, hypocrisy एंड greed टू द वर्ल्ड ऑफ द ट्रूथ, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस एंड कंटेंटमेंट. और पोइट कहाँ से भागना चाहते हैं? falsehood, हिपोक्रेसी और लालच भरे जीवन से दूर, ट्रूथफुल, ऑनेस्टी और जहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, एंड कंटेंटमेंट, ऐसे जीवन में जाना चाहते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोइट द क्वालिटीज़ वंस कंसिडर्ड टू बी ह्यूमन आर नो लॉन्गर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स. जो क्वालिटीज़ ह्यूमन्स की थी वो अब ह्यूमन बींग्स में नहीं है. दे हैव बीन एक्वायर्ड बाय द एनिमल्स. देयरफॉर द ही टर्न्स टू द एनिमल वर्ल्ड एंड वॉन्ट्स टू लिव इन देयर कंपनी. इसलिए हमारे पोइट एनिमल्स की तरफ टर्न करना चाहते हैं और ह्यूमन बींग्स की तरफ देखना नहीं चाहते हैं. मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स डू एंड एनिमल्स डू नॉट. ऐसी 3 बातें बताइए जो एनिमल्स करते हैं एंड ह्यूमन बींग्स करते हैं बट एनिमल्स नहीं करते हैं. ह्यूमन बींग्स बो टू देयर एंसेस्टर्स. वो अपने पूर्वजों के आगे सिर झुकाते हैं. बट अमंग द एनिमल्स अ सेंस ऑफ इक्वलिटी प्रीवेल्स. वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है. सेंस ऑफ इक्वलिटी इज़ देयर. Now, what are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? Now, what is the meaning of this question is that what are the tokens? कौन से टोकन हैं जो ह्यूमन बींग्स ने काफ़ी पहले छोड़ दिए हैं और एनिमल्स ने अपने साथ रख लिए हैं? वो टोकन कौन से हैं देखिए ज़रा. कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड, इनोसेंस, क्लियर हार्टेडनेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड ब्रदरहुड. ऐसी सारी बातें अब एनिमल्स के पास में हैं, ह्यूमन बींग्स के पास में बिल्कुल नहीं. आर सम ऑफ द वर्चूज़ दैट हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम अमंग ह्यूमन बींग्स. अब तो ह्यूमन बींग्स सोचते हैं कि वो सुखी है तो क्यों सुखी है, वो दुखी है तो खुश हो जाते हैं. देखो कितनी बैड क्वालिटीज़ आ चुकी हैं ह्यूमन बींग्स में. बट एनिमल्स हैव एक्वायर्ड एंड रिटेन्ड दैम. पर एनिमल्स ऐसे नहीं हैं. वो ऐसी बात नहीं सोचते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं. 2 रोटी खाते हैं और मज़े लेते हैं. वी हैव गिवन अप द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ आवर नेचर एज ह्यूमन बींग्स बट एनिमल्स हैव डेवलप्ड दीज वर्चूज़. हमने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं और एनिमल्स ने वो सब चीज़ें डेवलप कर ली हैं. What is the poet's attitude towards animals? The poet is full of admiration for animals whom he considers to be better than the human beings. अब हाँ, आपको इतना तो पता चल ही गया है कि पोइट जो है किसके फेवर में है? एनिमल्स के फेवर में है. उनको एडमायर कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा. ही अप्रिशिएट्स दैम फॉर देयर एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वाइटनेस, इनोसेंस एंड कंटेंटमेंट. उनके अंदर शांति है, कोई गुस्सा नहीं है, इनोसेंस है, मासूमियत है और कंटेंटमेंट है, तसल्ली है. ही इज़ सो अप्रिशिएटिव ऑफ द एनिमल्स दैट ही प्रेफर्स टू लिव अमंग दैम. वो इतना अप्रिशिएट करते हैं कि वो उनके साथ में रहना चाहते हैं रादर देन विद द ह्यूमन बींग्स. और ह्यूमन बींग्स के साथ में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेट्रेड, जेलेसी, ग्रीड, सेल्फ सेंटर्डनेस. ओके बेटा, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. आपने बिल्कुल ध्यान से प्रिपेयर करने हैं और मन लगा के पढ़ना है. एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है. ओके.